اے رائے حق کے شہیدو وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ ناظرین، عوامی نیوز اسٹوڈیو کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان عبدالرزاق راجپوت حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا مقصد ہے 16 دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو ثانیہ پیش آیا، جس میں دہشت گردوں نے اسکول میں گھس کر جو ہے ننھے منھے معصوم پھول جیسے بچوں کو جو ہے وہ قتل کیا اور دہشت گردی کی، جس کے اندر 132 جو بچے تھے ننھے منھے پھول وہ جو ہے مرجھا گئے اور انہوں نے جام شہادت نوش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول کے کچھ اساتذہ تھے، پرنسپل تھے، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کی۔ تو اسی سلسلے میں آج انہوں کی یاد کو تازہ کرنے کے حوالے سے جو ہے آج ہم نے عوامی نیوز کے اسٹوڈیو میں یہ پروگرام جو ہے منعقد کیا ہے۔ پروگرام منعقد کرنے کا مقصد ہے کہ ان کی یاد جو ہے وہ تازہ رہے۔ آج 7 سال گزر چکے ہیں پر ہم ان کی یادوں کو جو ہے ابھی بھی بھلا نہ پائے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے آج پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ منصور کمار جو موجود ہے، جو سوشل ورکر ہیں، اس کے ساتھ نصر اللہ عقلانی نوجوان قیادت ہے شاگردوں کی، اس کے ساتھ پرنسپل نیو ہرجن اسکول کے ہیں ارشد بروئی، اور ماہر تعلیم ایم جمن کمار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں۔ ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے عوامی نیوز کے اس پروگرام میں دیا ہے، تو بڑی مہربانی ہے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ثانیہ پشاور ایک بہت بڑا المناک واقعہ تھا، اس حوالے سے جو ہے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہمیں اسٹوڈیو میں دیا ہے، تو اس حوالے سے سوالات اور جوابات کا تھوڑا سا سلسلہ ہوگا، تو اس حوالے سے بچوں کو بھی جو ہے خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے، کیونکہ یہ واقعہ ایسا تھا جس کے اندر 132 بچوں کو جو ہے لقمہ اجل کیا گیا، اور دہشت گردوں نے جو اپنے ناپاک ارادے سے آئے تھے انہوں نے جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ جبکہ اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ بچوں میں ابھی بھی جو ہے حوصلے وہ بلند ہیں اور ہے۔ اس حوالے سے اپن بات کریں گے اس 16 دسمبر کے حوالے سے۔ ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے بعد کی صورتحال کیا ہے؟ کیا ہم اس حوالے سے جو ہے وہ محفوظ ہیں؟ بالکل، میں سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں عوامی نیوز کے جنہوں نے ثانیہ پشاور آرمی پبلک اسکول کا جو ثانیہ 2014 میں ہوا تھا، اور دنیا کی تاریخ میں یہ چوتھا بڑا اسکول کے حوالے سے ثانیہ ہے، پوری دنیا میں یہ چوتھا بڑا ثانیہ ہے، جس میں بالکل ننھے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، اور تعلیمی ادارے پہ ایک بہت بڑا اٹیک تھا۔ تو اس بچوں کے یاد میں جو ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے، بہترین یہ قدم ہے۔ عوامی نیوز کی پوری ٹیم کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ان بچوں، ان شہیدوں کی یاد میں ایک پروگرام رکھا ہے۔ اب بالکل جس طرح سے آپ نے کہا کہ بچوں کو شہید کیا گیا ان دہشت گردوں نے اپنے ناپاک ارادوں سے، ان میں ٹیچرز بھی تھیں، اساتذہ بھی تھے اور پرنسپل تھے، اور اس حوالے سے جس طرح سے آپ نے سوال کیا کیا اس ثانیہ کے بعد ہمارے اداروں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں، کیا ہم محفوظ ہیں؟ تو بالکل یہ جو اٹیک ہوا تھا، اور اس اٹیک کے دوران پاکستان آرمی نے اور سول سروسز گروپ SSG گروپ ہے، انہوں نے بہترین طریقے سے ان کو ریسکیو کیا اور 960 لوگوں کو انہوں نے بچا لیا۔ اگر وہ ریسکیو نہیں کرتے تو ہو سکتا تھا ہم مزید جانوں کو کھو دیتے۔ تو پاکستان آرمی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، SSG گروپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے جو گھنٹوں کا کام تھا وہ سیکنڈوں میں کر کے ریسکیو کیا اور اس میں 960 لوگوں کی جان کو بچا لیا۔ اور جو شہید بچے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنی رائے حق میں تھے، وہ تعلیم کے لیے نکلے تھے گھر سے اور انہوں نے شہادت نوش پائی، تو ہم ان بچوں کے والدین کے دکھ میں ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے اپنی سیکورٹیز کو اور جو ہے مضبوط کریں گے، اور انشاءاللہ گورنمنٹ سطح پہ اداروں کی اچھی سے دیکھ بھال ہوگی۔ زبردست بات کی آپ نے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں نصر اللہ بھائی، آپ سے کہ آپ شاگرد ہوں گے، نوجوان ہو، ان کی قیادت کر رہے ہو، تو اس حوالے سے اے پی ایس کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد سیکورٹی اداروں کی جانب سے جو کالج، اسکول اور گورنمنٹ پرائیویٹ اسکول جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کون سے انتظامات کیے گئے، اس حوالے سے کچھ ناظرین کو بتائیں تو پتہ چلے۔ دیکھیں، یہ 16 دسمبر جو بلیک ڈے ہم منا رہے ہیں، اس میں بہت سارے معصوم جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں۔ سیکیورٹی الحمدللہ یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد جو ہم متحد ہوئے نا، اس کی کوئی یعنی میں تعریف نہیں کر سکتا کہ ہم ساری قومیں، ہم سارے جو ہم ذاتیں تھیں، سارے جو پاکستان میں جتنے بھی لوگ تھے وہ اس واقعے کے بعد متحد ہو گئے، اور انہوں نے ٹیررسٹ کے خلاف جو ہے وہ یعنی یونٹی دکھائی۔ اور اس سارے سسٹم کے بعد اب بھی دیکھا جائے تو
तकरीबन हमारे जो अमन अमान के हालात है वो बहुत ही बेहतर हैं। पहले जो टेररिज्म बहुत थी और उस पे जो है पाक फौज ने और हमारी जो दीगर फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। उसके बाद हमारे जो सिस्टम था सिक्योरिटी का और भी महफूज होने लगा है। अब हमारे स्टूडेंट्स बहुत जो हैं वो सेफ़ हैं और अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारी सरजमीन अभी बहुत अमन अमान वाली हो गई है और बाहर से जो है लोग आ रहे हैं। तो ये एक ब्लैक डे है 16 दिसंबर और हम जाहिर बात है इस जो डे को हम भुला नहीं सकते कभी भी। मासूम फूल जैसी जानें जो है हमारी ज़ाया हो गई और हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और जो उनके वालिदैन हैं हम उनके साथ खड़े हैं। पूरा पाकिस्तान, पूरी कौमें और इवन पूरी वर्ल्ड जो है इस वाक़े के जो है ऊपर पेरेंट्स के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह अब हमारा जो मुल्क है वो पाकिस्तान वो अमन का गहवारा बन चुका है और डे बाय डे इंशाल्लाह जो है वो तरक्की करता रहेगा। सही। अच्छा भाई, मेरा आपसे सवाल होगा इस किस्म के वाक़यात के हवाले से कॉलेज और स्कूलों की जानिब से जो है वो कौन सा उन लोगों को भी किरदार कोई अदा करना चाहिए? सबसे पहले रज़ाक भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 16 दिसंबर के हवाले से उन बच्चों की, शहीद बच्चे और उनके असातिज़ा जो है उनकी याद में ये प्रोग्राम तरतीब दिया है और हमें आप मदद की, आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हैं। और उस स्कूलों के हवाले से ये है कि जब ये वाक़या पेश आया था 16 दिसंबर को, ये अफसोसनाक और अंदोनाक वाक़या जिसमें सैकड़ों जानें जो है वो हमारे फूल जैसे बच्चे, मासूम बच्चे जिनको लुक़मा अजल बनाया गया, उनको शहीद किया गया। तो उसके बाद चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हों, जो भी हों, उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस में बड़ा ताउन किया है। उसके फ़ौरन बाद, इस वाक़े के फ़ौरन बाद स्कूलों के अंदर ये डेटा ली गई कि आपके जो है सिक्योरिटी मेयर्स क्या हैं, आपके स्कूल में चौकीदार या इस किस्म के जो है वो गार्ड वगैरह है, ये मतलब इस तरह के एक प्रोफार्मा हमें मुहैया किया गया था जिसमें हमने उनको पूरी मालूमात स्कूलों के हवाले से, कॉलेजेस के हवाले से दी थी। उसके बाद भी काफ़ी अरसे तक जो है वो रेंजर्स और जो दूसरी एजेंसी उन्होंने हमें अपना नंबर भी मुहैया किया था कि किसी भी किस्म की इस तरह की जो है आप एक्टिविटी देखें तो हमें ज़रूर करें। तो उनका तावन बिल्कुल हमें उन पर जो हमें अपनी एजेंसीज़ पे और हमें अपने पाक आर्मी पे बिल्कुल फ़ख्र है। उसके बाद जिन्होंने रिएक्शन दिया है इस वाक़े के बाद, कोशिश यही थी कि इसके बाद इस तरह का बड़ा वाक़या या इस तरह के जो है छोटे वाक़यात भी, बड़े वाक़यात भी, तो एक जान भी जाती है तो इसमें तो सैकड़ों जानें थी, तो इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आए, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद अमन अमान की सूरत हाल स्कूलों में भी और बाकी जो है वो शहरों के अंदर भी आम तौर पर बड़ी पुरसुकून हालत है अभी भी और इस तरह की जो है वो इस तरह के वाक़यात में बड़ी जो है वो रोकथाम के लिए बड़ी कदम इक़दाम उठाए गए हैं और कोशिश यही है कि पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात आइंदा नहीं होंगे। हमारी यही दुआ है। सही। जुमान भाई, आपसे सवाल होगा इसी सिलसिले में, जो 16 दिसंबर है बच्चों ने जाम शहादत नोश की, बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के हवाले से ऐसे वाक़यात जो हैं वो कौन सी तब्दीली ला सकते हैं जो बच्चों पे ज़हनी नशोनुमा पर भी जो है वो हाइल हुए हों, दाखिल हुए हों? साईं, मुंहिंजा अर्ज़ु इहा आहे त अवामी न्यूज़ HD पारां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पाकिस्तान जा जेके मुख़्तलिफ़ इशूज़ जेके आहिनि उन्हनि ते उहा प्रोग्राम कंदी रही आहे। पिशावर जेको सानियो थियो हो अॼु खां 6 साल अॻे 16 दिसंबर ते 2014 में असांजे आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर जेको आहे उन में 150 जे लॻभॻि असांजा मैसूम गुलनि जहिड़ा ॿारड़ा जेके हुआ उन ते नापाक इरादा रखंदड़ दहशतगर्दनि जेको हमिलो कयो, सच पुछो त उहे मैसूम गुलनि जहिड़ा ॿारड़ा जिनके सुबुह जो सवेल उन माइरनि, उन भेनरनि सुबुह सवेल उन्हनि खे सवेल नाश्तो करायो हूंदो, बूट पॉलिश उनजा कया हूंदा, उनजी टाई ॿधी हूंदी, उनजी पैंट शर्ट पाराया हूंदा, उनजा कपिड़ा वग़ैरह पाराया हूंदा, थेलो बैग वग़ैरह रखी उनखे तयारु करे इन उमीदनि, चाहतनि ऐं हिकिड़ो यकीन सां मोकिलिया हूंदा त हीअ असांजा गुलनि जहिड़ा मैसूम ॿार क़ौम ऐं मुस्तक़बिल जा महिमान आहिनि। ऐं उन्हनि खे इन जा ज़हन में, सोच में, ख़्याल में ॻाल्हि कोन हूंदी त शाम जो वापसी में हीअ लहू में लथपथ हूंदा ऐं असांखे लाश मिलंदा या हिन सूरत मिलंदा। इहो सोच वीचार उन अमड़ियुनि खे, उन भेनरुनि खे कोन थो। उहे ॿार सुबुह सवेल उन बाइक ते या मोटरसाइकिल ते या रक्षाउनि में या उन्हनि जी बस वग़ैरह हूंदी उन में ते या उते पहुता हूंदा या दौरान क्लासिस 9-10 वॻे टाइम जेको वाक़ियो थियो आहे उन में हेॾो वॾो जॾहिं हादसो थियो, हेॾो लम्हो थियो, उन में पूरी पाकिस्तान में जॾहिं इहा ॻाल्हि आनेर थी ऐं हेॾो वॾो हादसो जेको ख़बर पई, सच पुछो पाकिस्तान जे 22 करोड़ असांजी जेका क़ौम आहे उनखे केॾी न तकलीफ़ थींदी, केॾी न असांखे दिलि में इहो अहसासु महसूसु थियो हूंदो त हर माण्हू ई महसूसु कयो पियो त इहो मुंहिंजो जिगर जो टुकड़ो आहे, इहो मुंहिंजो पुटु आहे, मुंहिंजा अंडा आहिनि, मुंहिंजा बच्चा आहिनि। असां ख़ुदि पाण महसूसु करियूं था। ऐं ख़ुदि मुंहिंजी ॻाल्हि करियां त मुंहिंजी नियाणी जेका नंढी आहे
उन कैफ़ियत में उन ॾुख जे घर में टेलीविज़न ते फुटेज उहो वाक़िया जॾहिं ॿुधा सच पुछो त उन ॾींहुं हुन मानी न खाधी, उनखे अहिड़ी परेशानी ऐं रोए पई सॼो ॾींहुं। ऐं असां चयो त बाबा छो, चई बाबा हेॾो वॾो हादसो थियो आहे, हीअ नंढड़ा मासूम गुलनि जहिड़ा जेके ॿार आहिनि उन सां हेॾो वॾो वाक़ियो थियो आहे, असांजी क़ौम उनखे इन अहिड़नि वाक़ियनि मां सबक़ु हासिलु करे मुतहद थियणो पवंदो, यूनिटी में अचिणो पवंदो, एके में अचिणो पवंदो, इताद में अचिणो पवंदो। ऐं असां समूरा माण्हू पाकिस्तान जा जेके आहिनि, पाकिस्तान जा जेके फोर्सिस इदारा जेके आहिनि उन सां कुलो मिलाए अहिड़नि नापाक इरादनि के ख़िलाफ़ु मुक़ाबिलो कंदासीं त इंशाअल्लाह ताला असांजे मुल्क ॾांहुं अहिड़े क़िस्म जी दहशतगर्द या नापाक इरादा कॾहिं बि मेरी अखि खणी न ॾिसी सघनि। सही, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने जुबल भाई। उसके साथ मंसूर भाई आपसे सवाल होगा मेरा कि अल्लाह ना करे कि ऐसे वाक़यात हों दोबारा रूनमा हमारे मुल्क के अंदर, जिससे नुकसान हो, बच्चों का हो चाहे बड़ों का हो, नुकसान तो एक नुकसान है और जानी नुकसान तो एक बहुत बड़ा नुकसान ही है। अपने बच्चों को जो है हम स्कूलों में भेज तो देते हैं, इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं उनको ज़हनी तौर पर किस तरह तैयार रहना चाहिए, मतलब बच्चों को भी, अल्लाह ना करे ऐसा वाक़या हो दोबारा। जी बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन किया है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो टेररिज्म है उसके हवाले से वाक़यात रूनमा हो रहे हैं, क्योंकि ये हम कभी नहीं कह सकते कि हम 100% सिक्योरिटी में हैं। बिल्कुल इस तरह के वाक़यात अल्लाह ना करे लेकिन हो सकते हैं, तो उसके लिए बहैसियत हमें कौम अपने बच्चों को उस हवाले से घर में वालिदैन को भी तैयार रखना चाहिए। स्पेशली जो स्कूल्स हैं जिसमें हमारा जो सिलेबस है उसमें स्काउटिंग का भी उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए। बच्चों को स्काउटिंग सिखाई जाए कि अचानक जो हादसा हो जाए, स्कूल में कोई आग लग जाए, बिजली का शॉर्ट सर्किट हो जाए या इस तरह का कोई हादसा अगर दहशतगर्दी का हो, तो बच्चे किस तरह से अपने आप को उनका जो है सिक्योरिटी के हवाले सेफ डोर होने चाहिए कि इमरजेंसी डोर्स होने जहाँ से उनका एग्जिट हो बच्चों का, ताकि बच्चे वहाँ से बाहर निकल सकें या उस सानिए को किस तरह से डील कर सकें। तो उसके हवाले से बच्चों को ज़हनी तौर पर स्कूल में उनके सब्जेक्ट्स भी रखे जाएं, स्काउटिंग भी उनको सिखाई जाए ताकि वो इन तरह के मामलात में वो जो है डील कर सके, उनको फेस कर सके। ज़बरदस्त का आपने, ये बात भी बड़ी अच्छी हुई आपकी। मसला भाई ऐसे वाक़यात जो रूनमा हो, अल्लाह ना करे कि हो, और ये पाकिस्तान में अक्सर इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं, तो इसमें जो बच्चों के जो जहनों के अंदर जो एक खौफ तारी हो जाता है, तो उसके लिए कौन सी हिकमत अमली होनी चाहिए जो बच्चों के जहनों से ये खौफ की जो फ़ज़ा है ये ख़त्म हो? जी, इसके लिए जो है पेरेंट्स को रोल अदा करना होगा, उस्ताद जो है हमारे उनको भी रोल अदा करना पड़ेगा, जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। और ये खौफ जो है पहले जो जिस टाइम पे ये वाक़या हुआ था उस टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा खौफ बढ़ गया था, मगर जिस तरीके से हम सब ने इस चीज़ को कवर किया, हमारी सिक्योरिटी जब देखी, और तो अभी तो बहुत सिक्योरिटी के हालात बिल्कुल सही हो गए हैं, तो अभी तो ऐसे किस्म की कोई बात है नहीं, मगर कुछ चंद अनासर हैं जो बहुत सारे जो हमारे ऐसे जो मुखालिफ मुल्क हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें करवाते रहते हैं ताकि जो हमारा मोरल है, वो हमारा कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो, और हमारी जो यूथ है, जो हमारी नस्लें हैं वो आगे ना बढ़ सकें। मगर ऐसा कुछ होगा नहीं इंशाल्लाह। हमारे फोर्सेस, हमारी पाक अफ़वाह जो है वो अच्छा काम कर रही है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ऐसा वाक़या जो है तालीमी इदारों में खासकर नहीं होगा। सही। अच्छा भाई, आप भी एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप पर भी एक बड़ी जवाबदार हैं आप, मतलब एक निभाते हैं सिस्टम को। तो स्कूलों में जो इस किस्म के जो वाक़यात हैं रूनमा होते हैं, इसके लिए कोई खसूसी वर्कशॉप वगैरह के हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये होने चाहिए? जी बिल्कुल, स्कूलों में होना चाहिए नहीं बल्कि हुए हैं। इस वाक़े के बाद जो है वो काफ़ी स्कूलों के अंदर स्कूलों की तरफ से, कॉलेजेस की तरफ से इस तरह के वर्कशॉप्स, बल्कि यहाँ पर एक मैं बात जो है वो करना चाहूँगा कि किसी दौर के अंदर आपने भी शायद स्कूल कॉलेज वगैरह के अटेंड किया होगा, सर वालों ने भी किया होगा, तो एक एनसीसी ट्रेनिंग होती थी जी, वो बदकिस्मती से अभी कुछ सालों से बंद है। तो ये 20 दिन की ट्रेनिंग में जो है वो बच्चे या जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते थे वो बहुत कुछ सीखते थे। उसके अंदर जो है 20 दिन की ट्रेनिंग में हमने भी जब एनसीसी की थी तो उसमें काफ़ी सारी बातें, और उसमें कैमोफ्लेज करना और अपना खुद का दिफा करना, सेल्फ डिफेंस वगैरह जो है वो सिखाई जाती थी। तो वो भी एक तरह की वर्कशॉप ही थी। तो इस तरह के अगर छोटी छोटी ट्रेनिंग्स और छोटी छोटी, जैसे सर ने बात की कि स्काउटिंग भी पहले होती थी स्कूलों के अंदर, अब वो बदकिस्मती वो भी बंद है। सही। तो काफ़ी साल पहले जो है वो एक दफ़ा कराची के अंदर जो है एक स्काउटिंग का प्रोग्राम था जिसमें हम 3 दिन के लिए गए थे। वो भी क्योंकि स्कूलों की जो है वो अदम दिलचस्पी है, इतनी दिलचस्पी इन चीज़ों के अंदर नहीं है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं तो उसके अंदर बच्चों का भी इसमें बड़ा फ़ायदा होता है, और सेल्फ डिफेंस के मुतल्लिक जो है बच्चे आगाह होते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए स्कूलों के अंदर। सही।
जबरन भाई, आपसे भी इस सिलसिले को बढ़ा रहे हैं, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। क्या हमें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में इस तरह के वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के जो सिलेबस है इसमें इस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए जिससे वो इस तरह के वाक़यात में अपना दिफा खुद कर सके? साईं मुंहिंजा साईं जी अरशद बिरोही साहब या मंसूर साहब जेका ॻाल्हि कई, ॾाढी वज़नदार ॻाल्हि कई त स्कूल में जेके ॿार पढ़नि पिया, निसाब असांजो आहे टेक्स्ट बुक जेको आहे उन में अहिड़े क़िस्म जा सबक़ हुजणु खपनि, लेसन हुजनि त ॿार हुन मां आसरात हासिलु कनि। या NCC जी थींदी हुई पुराणे दौर में, जेका बंदि थी वई, उहा 15-20 ॾींहं जेका ट्रेनिंग थींदी हुई, हुन में ॿार खे मुकमिल ट्रेनिंग में एॾो तयारु कयो वेंदो जो ॿार खे ज़हनी तरह ॿार तयारु थींदो त मूंखे इतफ़ाक़न हलाका थिए, को हमलो थिए, को अटैक थिए, कहिड़े क़िस्म जो हुन में बचा जो तदाबीर मूंखे कहिड़ो आहे, उनमें फ्लाइट बि हूंदी आहे सर, हुन में क़िस्म जी इहो हूंदी हुयो। त असीं चाहियूं था त अहिड़े क़िस्म जा वाक़ई सब्जेक्ट जेके आहिनि उन में अहिड़े शयूं हुजणु खपनि। ऐं उन खां अलावा असांजी सिविल सोसाइटी, असांजा समाजी इदारा, असांजा NGOs, असांजा वालदीन, असांजा उस्ताद अहिड़े क़िस्म जूं एक्टिविटियूं कराइनि, अहिड़े क़िस्म जूं सरगर्मियूं कराइनि त स्कूल में अहिड़े क़िस्म जूं सरगर्मियूं एक्टिविटियूं थियूं त ॿारनि में हमायगी पैदा थींदी, अंदरि में हिकिड़ो ख़ौफ़ ऐं डपु जेको वेठल आहे उहो ख़तमु थींदो, बहादुरी थींदी। ऐं इंशा ताला अहिड़े क़िस्म जूं जेकॾहिं वर्कशॉप, ट्रेनिंगूं, ॿारनि खे एक्टिविटियूं, सरगर्मियूं जेकॾहिं मुख़्तलिफ़ स्कूलनि में, इदारनि जेकॾहिं गवर्नमेंट तरफ़ां, टीचरनि तरफ़ां, वालदीन तरफ़ां, सिविल सोसाइटी तरफ़ां या NGO तरफ़ां करायूं वेंदियूं त सच पुछो त असां उहो लाभ हासिलु कंदासीं ऐं असांजा उहे ईंदड़ मुस्तक़बिल जा जेके महिमान आहिनि उहे सेफ हूंदा, सिक्योर हूंदा। ऐं उन्हनि में हिकिड़ी क़िस्म जी अंदरि में जेको इंसानु जेको वेठो आहे उन में हिकिड़ो डपु ऐं ख़ौफ़ आहे, उहो तरे निकिरी ईंदो हुयो ऐं असां पंहिंजे असुल नतीजनि ते पहुची सघूं। सही। अच्छा भाई, दोबारा आपकी तरफ से मैं आता हूँ कि आपसे रिलेटेड एक सवाल है। आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मालिक भी हैं, इस हवाले से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं या होती रही हैं स्कूलों में भी, और वैसे भी जो दहशतगर्दी होती है, इससे आप कितना मुतमईन हैं? मतलब क्या कहेंगे इस हवाले से? मतलब इसके डिफेंस के हवाले से? जी हाँ। नहीं, बिल्कुल। हम इस ख़ास तौर पर इस वाक़े के बाद एक बहस थे कौम के, तो एक पाकिस्तानी कौम जो है एक इसमें इताद भी नज़र आया था, इत्तेफाक भी नज़र आया था उसके उस वक्त से लेकर अभी तक। तो हम बहैसियत एक कौम अपने अफवाज पाकिस्तान से और उनकी जो बाकी जो इदारे हैं, ज़ैली इदारे हैं, उनसे, पाकिस्तान रेंजर से बिल्कुल मुतमईन हैं। और उसमें जो है वह हम सिक्योरिटी इदारों को भी और अपने पाक रेंजर्स को, आर्मी को सलाम पेश करते हैं। अब इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी स्कूलों के हवाले से या प्राइवेट लगा लें या गवर्नमेंट स्कूल लगा लें, तो उसमें सिक्योरिटी के मेयर्स हैं बिल्कुल। कुछ स्कूल जो अफोर्ड कर सकते हैं उसमें गार्ड्स वगैरह भी हैं, उनमें CCTV कैमरे भी हैं, और उसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी, जहाँ पर इस तरह के ख़तरात होते हैं, ख़ासतौर पर शहरों के अंदर जो है पेट्रोलिंग भी होती है, सर्विसेज दी जाती है आर्मी की या पुलिस की तरफ से, या तो हम बिल्कुल इस सिक्योरिटी के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से मुतमईन है बिल्कुल। ख़ास तौर पर पहले भी थे, लेकिन इस वाक़े के बाद जो वो हमें बहैसियत कौम जो है ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि हमें मतलब एक तरह से इस वाक़े के बाद हम मुत्तहिद हो गए हैं मज़ीद। रसूलुल्लाह भाई, आपसे भी एक सवाल है। आप नौजवान शागिर्दों की जो है वो रहनुमाई कर रहे हैं, और तो इस हवाले से आपसे सवाल होगा मेरा कि इस किस्म के जो वाक़यात रूनुमा होते हैं उनसे निपटने के लिए जो हमारा स्कूलों में निसाब पढ़ाया जाता है, उसमें जो है इस किस्म के जो मजमून होने चाहिए जिनसे बच्चों के जो जहन है उनको वो मेंटेन रहे और वो ज़हनी तौर पर तैयार रहें इस हवाले से कि हमें क्या करना है अगर कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाए। तो निसाब में अगर ये मजमून ऐसा शामिल हो जाए तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? रज़ाक भाई, निसाब भी अपनी जगह ठीक है, मगर इससे अच्छा होगा कि स्काउटिंग जैसी जो है वो सिस्टम होना चाहिए। बच्चों को प्रैक्टिकली जितना पता होगा इन चीज़ों का उतना जो है वो लेसन से नहीं हासिल कर सकते, मगर थोड़ा बहुत होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, और उन चीज़ों से निपटने के लिए जो है वो थोड़ा बहुत स्टडी भी होनी चाहिए। और ये तब होगा जब उनको ट्रेनिंगें करवाई जाएंगी। हमारे पास तो अभी ये चीज़ें थोड़ी कम हो रही हैं, और इसका जो मेन रीज़न है वाकई सर बिरोही साहब ने जैसे कहा कि स्कूल जो है वो इंटरेस्ट नहीं रह रहे इन एक्टिविटीज़ के अंदर। जैसे हमारे पास जो पहले PT भी होती थी वो भी नहीं हो रही, इवन इतना कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों की हेल्थ केयर से लेके ये सारी चीज़ें जितनी डिफेंस की हैं वो सारी बच्चों को सिखानी चाहिए, ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, और ट्रेनिंग के लिए एक अलग ट्यूटर होना चाहिए जो ये ट्रेनिंग्स करवाए। और होप है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो फ्यूचर में चीज़ें हो जाएंगी। सही। हमारा ये मैं भी एक बात करता चलूँ कि हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आपके
चैनल के तवज्जुह से एक मुतालबा भी है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ ख़ास तौर पर जो एनसीसी थी उसे बहाल किया जाए, सही। क्योंकि 20 दिन के अंदर बच्चे बहुत कुछ सीखते थे। कुछ सही। 20 दिन के अंदर हम इतना पढ़ाते नहीं जितना जो है वो हमें ये सीखने का मौका जो मिलता था 20 दिन के अंदर। सही। उनकी बल्कि फायरिंग जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाती थी, फायर भी होते थे सही। एक दिन पर। और इसके अलावा जो है वो ये अपना स्काउटिंग की जो वर्कशॉप्स हैं ये करवाई जाए। सही, बड़ा अच्छा जवाब है आपका। ये होना चाहिए, बिल्कुल। इससे जो है वो मालूमात में भी इजाफा होता है और जहन जो है वो बच्चों का जो मेंटेन रहता है। मंसूर भाई, आप भी सोशल वर्कर हैं, अपने मुल्क पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं, इंतहा पसंदी जो है वो बड़ी अरूज पर है, इसका मुस्तकिल जो हल जो है वो क्या होना चाहिए, आप थोड़ा बताएं इस हवाले से। मुस्तकिल हल की जो बात है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमारे जो पाकिस्तान का आइन है उसमें हमें मज़हब और सियासत को अलग करना पड़ेगा। सही। क्योंकि हमारी सियासत में जब मज़हब और सियासत साथ चलेंगे तो कभी भी ये कौम इन तरह के मसाइल से आगे मसले निपट नहीं सकती। सही। क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिकल बात होती है तो वहाँ एक रिलीजियस बात भी आ जाती है, और रिलीजियस जो मसले अभी आप देखें पिछले दिनों में बहुत बड़ा सियालकोट में फैसलाबाद में वाक़े रोनमा हो रहे हैं कि लोग अपनी ज़ाती अना को भी मजहबी रंग का इशू देकर और मसाइल पैदा कर देते हैं। तो इसलिए ये मैं कहूँगा कि इसका मुस्तकिल हल ये है कि हमने रवादारी को प्रमोट करना होगा कि हमने बगैर किसी मज़हब किसी रंग नस्ल के फ़र्क के हमें एक इंसान होने के नाते, एक कौम होने के नाते हमने एक होना पड़ेगा कि हमारे दिलों में जो एक हसद है कि ये फ़लाँ फ़िरके से है, फ़लाँ कौम से है, फ़लाँ मज़हब से है, फ़लाँ ज़ात से है, इस तरह की जो तालीम है उसको फ़रोग़ देना पड़ेगा। ख़ास तौर पे हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों को हम ये तालीम दें कि हम एक इंसान हैं, हम एक कौम हैं, हम पाकिस्तानी सब एक कौम है। जब हम अपने आने वाली नस्लों को इस तरह की तालीम देंगे तो यकीनन हमारे मुल्क में जो ये मजहबी, समाजी या सियासी जो तअस्सुबात हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। और ये जो इस तरह के जो मसले पेश होते हैं उनकी बड़ी एक लंबी मतलब कहानी होती है, ये एक दो दिन की बात नहीं होती, इसके पीछे सालों लगते हैं। कोई वाक़या होता है तो उसकी प्लानिंग के पीछे साल लग जाते हैं। तो इन चीज़ों को निपटने के लिए हमें इस कौम की तरबियत करनी होगी, और तरबियत हम अपने आने वाली नस्ल की कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने बात की कि हम रवादारी तारीख पे जाएं, कि हम मजहबी फितनात हैं इनको निपटने के लिए हम जो है तालीम में भाईचारे का उसमें रखें या निसाब में इस तरह की एक्टिविटीज़ रखें, तो ये काफ़ी बेहतर हल होगा कि हम दुनिया की जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनके साथ शामिल हो सकते हैं। अच्छा, प्रोग्राम को जो है वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं, तो मेरा तमाम मेहमानों से ये सवाल होगा कि पाकिस्तान में अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई वाक़या बड़ा रूनुमा होता है तो उसके बाद जो पाकिस्तानी पूरी कौम है वो भी मुतहद हो जाती है, सिक्योरिटी इदारे भी जो है मुतहद हो जाते हैं, पर उसके बाद फिर कोई ऐसा वाक़या पेश हो जाता है तो वो फाइल नीचे जब दब जाती है फाइलें। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कौन सा पैगाम देंगे कि मुल्क के अंदर पाकिस्तानी जो इंतज़ामिया है, सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके साथ साथ जो वालिदैन हैं जिनके बच्चे शहीद हुए हैं और जो और भी वालिदैन जिनके बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं, उस हवाले से जो है थोड़ा थोड़ा सा टाइम के लिए एक जो है अपना मौक़िफ़ जो है वो दे दें नाज़रीन को, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपका सवाल है कि इस तरह से वाक़यात होते हैं और कुछ वक्त के लिए बड़ा हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, उसके बाद ये फाइलें दब जाती हैं या गवर्नमेंट सतह पे इस तरह की जो इक़दाम हैं उसमें कमी आ जाती है। तो इसके लिए मैं इस प्रोग्राम के तवल्सल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जिस तरह से इस प्रोग्राम में चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि हमें अपने निसाब में एक बाकायदा इस तरह की कोई सबक, इनका लेसन, इनकी एक्सरसाइज शामिल होनी चाहिए और बच्चों का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी की जाएँ। जिस तरह से पेशावर सानी के बाद फ़ौरन स्कूलों में जो प्रोग्राम हो रहे थे उसमें टेबलोज पेश किए जा रहे थे, जिसमें टेबलोज में वो सानिया दिखाया गया कि किस तरह से टेररिस्ट इंटर हुए हैं, बच्चों को किस तरह से उन्होंने अटैक किया है और बच्चों की सूरत-हाल क्या थी, या जो पूरा ये सानिया हुआ था उसको उसमें पिक्चोरियल पेश किया गया, ताकि इस तरह से बच्चों को कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर इस तरह का मसला होता है तो हम किस तरह से फेस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सतह पे ट्रेनिंग्स का बाकायदे अमल शुरू किया जाए, यूनिवर्सिटीज़ हो या प्राइमरी लेवल तक हो, बच्चों के निसाब में इस तरह की बाकायदे चीज़ें शामिल की जाएं और सिक्योरिटी इदारों से भी उनका आपस में कोलैबोरेशन किया जाए। गवर्नमेंट के इदारों में सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनकी मीटिंग्स होनी चाहिए, उनके बच्चों के साथ मुलाकातें होनी चाहिए, या जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी ट्रेनिंग्स भी रखवाई जाए इदारों में, ना सिर्फ स्कूलों में बल्कि तमाम जो सरकारी या गैर सरकारी इदारे हैं
وہاں اس طرح کی تربیت دی جائے تاکہ ہم ایک قوم ہو کر ان طرح مسائل کو سامنے فیس کر سکیں. صحیح. نصر اللہ بھائی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں اس واقعے کے بعد جو ہماری ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں وہ تقریباً مکمل طرح سے سیف ہیں اور ایسا کوئی واقعہ ایجوکیشن میں نہیں ہوا. بہرحال جو باہر واقعات ہوتے رہتے ہیں، ظاہری بات ہے اتنا بڑا ملک ہے تو اس میں جو ہے سیکیورٹی بہت ہماری ٹائٹ ہے. اس کے علاوہ بھی کہیں کہیں واقعات ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، جو ہمارے ممالک ایسے ہیں جو ہمارے مخالف ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ادھر کچھ ترقی ہو. بہرحال ہمارا ملک صحیح سمت پہ جا رہا ہے اور پھر بھی جو ہے ہماری لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہیں ہماری، وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے. ان کی فل ٹریننگس ہو رہی ہیں اور جو ہے انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے وہ بہتری ضرور آئے گی. اور ابھی تک جو ہے ہمارا ملک جو ہے ایسے واقعات سے محفوظ ہے. کچھ ایک کا دکا واقعات تو ہر ملک میں ہوتے رہتے ہیں. آپ امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، اتنے بڑے اچھے اچھے ملک ہیں، وہاں پہ بھی ایسے ٹیررسٹ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو یار ملک میں ہوتا ہے. بہرحال ہمارا ملک ابھی بالکل سیف ہے اور انشاءاللہ آگے بھی سیف رہے گا. آپ کون سا پیغام دیں گے اسد بھائی پیرنٹس کو؟ اصل میں ایک بات میں یہاں پر بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم دیکھیں یہ دو الفاظ آتے ہیں، تعلیم اور تربیت. صحیح. تعلیم تو ہم دے رہے ہیں، صحیح. تربیت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. صحیح. تو تربیت بھی ضروری ہے. صحیح. تو ہمارے پاس یہ، کیونکہ ہم نے بھی بچپن سے کتابوں کے اندر تعلیم اور تربیت دو الفاظ ایک ساتھ پڑھے ہیں، لیکن ابھی بدقسمتی یہ ہے کہ تعلیم تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے. تو پوری بات کا جو یہ سمری یہ ہوگی کہ جو ہم نے بات کی کہ ایک تو NCC ٹریننگ ہو گئی، اس طرح کے ورکشاپس ہو گئے اور جو اسکاؤٹنگ کی ورکشاپس ہو گئی، اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے بچوں کے اندر جو ہے وہ ایک سول ڈیفینس کا ایک پیدا ہوتا ہے، شعور بھی پیدا ہوتا ہے، شوق بھی پیدا ہوتا ہے. جب بچہ یونیفارم پہن کے اور آرمی کی یونیفارم پہن کے یا رینجرس کی یونیفارم پہن کے پرفارم کرتا ہے، تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس سے جو ہے وہ بچوں کے اندر بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. تو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو مختلف قسم کے جو ہمارے ادارے ہیں، ہمارے جو حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے ملک پاکستان کی جو فورسز ہیں، ان کا اور اسکولوں کا اور کالجز کا آپس میں ایک تعلق، جیسے سائی منصور صاحب نے کہا، ایک کولیبریشن ہو آپس میں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ان کے اندر جو اسکولوں کو انوائٹ کیا جائے، اس طرح کی جو ہے وہ آرمی کی طرف سے یا رینجرس کی طرف سے پروگرام رکھے جائیں جس میں مختلف اسکولوں کو مدعو کیا جائے، ان کے بچوں کو مدعو کیا جائے، وہ آ کے پرفارم کریں اور ان کے اس طرح کے 2-3 دن کے ورکشاپس کروائے جائیں سیلف ڈیفینس کے اوپر اور اس طرح کے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو ہے وہ میں ان جو سانحات جو 16 دسمبر پہ ہوا تھا، اس پہ جو سینکڑوں بچے تھے، ان کے جو شہید ہوئے تھے، ان کے اساتذہ شہید ہوئے تھے، ان کے والدین کے دکھ میں، ان کے پیرنٹس جو بھی ہیں ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لیے ہم ہمیشہ دعا رہیں گے انشاءاللہ. صحیح. جون بھائی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ایک استاد جو ناتے پورے پاکستانی قوم کے ان 16 دسمبر تے جو وڏو سانحو थियो، مطلب پوری قوم کے چونس، ان امڑن کے چونس، ان بہنوں کے چونس تव्हांजा حوصلہ जेके बुलंद हुअणु खपनि. सॼी क़ौम तव्हां सां गॾु आहे. अचो त पाण इन ॾींहं जे हुअण जे नाते सां पाण में वचन करियूं त असां हिन मुल्क जा वफ़ादार सचा सिपाही आहियूं ऐं हिन मुल्क जो दफ़ा करणु ॼाणूं था. अचो त इन ॾींहं जे यादि जे हवाले सां सभु गॾिजी यूनिटी, एके ऐं इता सां गॾिजी ऐं इहो दुश्मन खे साबित करे ॾेखारियूं त असां अॼु बि पहिरें सफ़े बि मुक़ाबिलो करण लाइ तयारु आहियूं. صحیح. زبردست. بڑی مہربانی تمام مہمانوں کی، منصور کمار بھائی کی بڑی مہربانی، نصر اللہ اکرانی بھائی کی بڑی مہربانی، ارشد بروئی کی مہربانی، اس کے ساتھ ساتھ ایم جمن کمار کی بڑی مہربانی جنہوں نے جو ہے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں اس پروگرام کے لیے دیا. تو پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لیے چلتے ہیں. میرا بھی یہی کہنا ہے کہ اس قسم کے جو پروگرام ہیں وہ منعقد کیے جائیں اور ان تمام مہمانوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس قسم کے پروگرام کرائے جائیں. NCC کی جو ٹریننگ ہے گورنمنٹ کی طرف سے ختم کی جا چکی ہیں، ان کو دوبارہ بحال کیا جائے. اسکولوں میں، کالجوں میں حکومت کی طرف سے سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے ورکشاپ کرائے جائیں، ان کے اندر ان بچوں کے سے جو ہے وہ پرفارم کرایا جائے تو ان کا پتہ چلے، ان کے ذہنوں کی نشو نما میں جو ہے یہ چیزیں حائل ہو جائیں کہ اگر اللہ نہ کرے کہ ایسے واقعات اگر اس ملک میں دوبارہ رونما ہو تو دہشت گرد جو ہے اپنے ناکام جو ان کے عزم ہے ان میں وہ کامیاب نہ ہو سکے. اس دن کو ہم کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے. ان شہید بچوں کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. وفا نے پھر ہمیں پکارا ہے، دیکھ تو لو
कल भी हारा था तो आज भी हारा है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी जो कौम है वो एक प्लेटफार्म पर जमा है और सिक्योरिटी फोर्सेज है वो भी एक ही प्लेटफार्म पर अपने मुल्क की दिफा के लिए जमा है। अगले प्रोग्राम तक दी गई इजाज़त, अल्लाह निगहबान। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।